جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما بیگم تہمینہ دولتانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میم پولیٹکس میں بائی چوائس آئی ہیں یا بائی ایکسیڈنٹ آئی ہیں؟ نہیں، بائی چوائس. اچھا. میں نے فیل کیا کہ جہاں میاں ممتاز دولتانہ صاحب الیکشن لڑتے تھے، جہاں میاں ریاض دولتانہ صاحب الیکشن لڑتے تھے، اور ہم لوگوں کے لیے صرف الیکشن لڑنا نہیں ہوتا. ہماری جی اپنی قوم ہے، ہمارے جویا قوم ہے، ہماری دولتانہ قوم ہے، ہماری سلدیرہ ہے، ہمارے مگرانے ہیں، ہمارے سارے لوکل برادری ہیں. ہم بیسکلی میں راجپوت ہوں جی، میرا جون سی والدہ ہیں وہ جٹ ہیں. تو میرا مطلب ہماری بہت سی قومیں ہیں، ہم اپنے لوگوں کا لک آفٹر کرتے ہیں. تو جب اگر ہم میں سے کوئی نہیں لڑے گا تو پھر ہم لوگوں کا کون لک آفٹر کرے گا ان لوگوں کو؟ ٹھیک. تو اس لیے میں کھڑی ہوئی ٹھیک. کہ اپنا ہمارا کوئی ہونا چاہیے. ٹھیک. نہ تو ہماری قوم میں ہمارے لوگ تو بالکل اکیلے رہ جائیں گے. پھر میں نے قدم اٹھایا کیونکہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ میرے بھائی ڈیلے کر رہے تھے سیاست میں آنے سے. میں نے ان کو کہا میں آپ کو ٹکٹ لے کے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ابھی نہیں. میں نے کہا ابھی نہیں. تو پھر میں نے قدم اٹھا لیا، پھر پیچھے نہیں رکھا. اچھا. تو گھر میں پھر بھائی کی مخالفت، والدہ کی سپورٹ تھی آپ کو؟ ہاں، والدہ کی تھی، اچھا. والد کی بھی تھی. والد کی پھر ڈیتھ ہو گئی. ہاں جی وہ تو انکل ممتاز اور ابا جی میرے پہلے الیکشن میں دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے. اچھا. اور اگلے الیکشن دونوں کی ڈیتھ. اچھا، بچوں کو پھر کس طرح سے ٹائم دیا کرتی تھی؟ بچوں کے ساتھ کیا آپ کا جو ہے وہ شیڈول ہوتا تھا جب آپ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی چلے گئی؟ خیر بچے بھی اس وقت تک بڑے ہو گئے ہوں میرے گے، بڑے بچے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک ٹائم جو ہے وہ ان کو کس طرح سے مینیج ہوتا تھا؟ میں نے بچوں کے ساتھ ابھی تک ایک بچہ نیچے رہتا ہے، ہاں. ایک بچہ اوپر ہے. ہاں. تو بچوں کو نہیں میں نے کبھی چھوڑا. میں جاتی تھی تو میں یہیں سے لے جاتی تھی. اچھا. لاہور میں پڑھ رہے تھے تو یہیں سے ان کو ساتھ لے جاتی تھی. پھر بہاڑی جانا ہوتا تھا تو واپسی میں یہاں چھوڑ کے پھر آگے بہاڑی چلی جاتی تھی. تو میں اپنی اولاد اور ابھی بھی ان کے بزنس میں بھی میں ان کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے، ہاں جی مجھے پتہ ہے. سب کچھ. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ عوام کے مسائل، ظاہر ہے ہمارے ہاں نارمل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ حلقے کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جی سانو ایس ایچ او نال کام ہے، ساڈی گلی پکی کرا دیو. آپ نے ان کے ان مسائل کے اوپر زیادہ فوکس کیا، ان کے حل کے لیے کوشش کی، یا ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی؟ نہیں جی، دونوں کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا. سارے کام کرنے پڑتے ہیں آپ کو. مگر ایک چیز ہے، میری کوشش یہی رہی کہ بات وہ کروں جس میں انصاف ہو. یہی میری کوشش رہی. اور گلیاں بھی پکی کرائیں جب ہماری حکومت آئی. جب حکومت نہیں ہوتی وہ بڑے سمجھدار ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہو سکتا. اور جیسے میں نواز شریف کے ساتھ کھڑی رہی نا، اسی طرح حلقے والے بھی میرے ساتھ کھڑے رہے. اور کبھی کبھی ایسی حکومتیں آئیں جنہوں نے خریدنے کی کوشش کی آپ کو؟ نہیں وہ تو کرتے رہتے. اچھا وہ تو کرتے رہتے، وہ تو کام چلتا رہتا ہے. اچھا. پولیٹیکل پریشرز بھی آتے رہتے ہیں. جی وہ تو بہت کچھ چلتا ہے. اچھا. مگر پھر تہمینہ دولتانہ کو نہیں نا کئی لوگ جانتے. تو مین جانسا ہے کہ جس طرح میں اپنے اس کے ساتھ لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں، وہ ماشاء اللہ کی کوئی ہمارے ساتھ یاد شیئر کریں. ماشاء اللہ جب لگا آپ کہاں تھی اس وقت، اور اس خبر کو کیسے آپ نے برداشت کیا، اور اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوئیں؟ ماشاء اللہ ایکچولی جو لگا تھا نا وہ تو تھا مشرف کا، وہی 99 والا. 99 والا. میں اس وقت میاں نواز شریف کی وزیر تھی. ہاں بالکل تھی. بہت سے وزیر اس وقت اپنا سامان باندھ کے چھلانگے مار کے نکل گیا. مگر ہم میں سے چند وزیر وہیں رہے. ان میں سے تھے جوید ہاشمی صاحب، یاسین بھٹو صاحب،
ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये सारी लॉट उस वक्त जो आज की मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है, ये सारी उस वक्त मौजूद थी। हाँ, मगर साद अभी नहीं बने थे, वजीर नहीं बने। हाँ, वजीर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका काम कर रहे थे, वो बड़े स्ट्रगल के अंदर थे, बड़े एक्टिव थे वो, बहुत बहुत, बिल्कुल वो स्ट्रगल में थे। और उसके अंदर मुशर्रफ साहब की तरफ से ऑफर आई थी कोई? आपके ख्याल है नहीं ऑफर आई होगी? आज नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल आई थी, यहाँ पर अच्छा। भेजा गया था कि आप जो चाहती हैं आपको हम करेंगे, जब तो आप मेहरबानी से हमें ज्वाइन करें। ठीक है। तो मैंने कहा जी अभी तो मैंने जेल 3.5 महीने की जेल अटेंड करके है, तो हमें तो पता ही नहीं था आप जेल में। अच्छा, मैंने कहा बढ़िया, आप गाफिल है। अच्छा। तो हमें तो पता ही नहीं था, तो जो आप चाहती हैं हम करेंगे। फिर मैंने कहा तो अगर मैं ना करूं तो कहते हैं हम आपको सिफर कर देंगे। तो सिफर करने वाले तो पता नहीं किधर है, वो तो यहाँ नहीं है ना। कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सबके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। ये इस वक्त मेरा बेटा, छोटा बेटा, अच्छा, इस वक्त एमपी है। हाँ एमपी है, बिल्कुल, इरफान दौलताना साहब। हाँ जी वो है। मेरा बड़ा बेटा इस वक्त सदर है बिहारी का। ठीक है, इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं असेंबली में नहीं हूँ, तो 26 साल मैं असेंबली में थी। उस वक्त जब ये लोग हराते थे मुझे, तो मियाँ साहब मुझे अंदर भेजते। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये लोग हराते थे, वो उनकी आपसे खुसूसी मोहब्बत का ये नतीजा था, ये नजर आती थी मोहब्बत आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बीबी कुलसूम, अच्छा, फिर एक ज़रूरत भी थी उस एरिए से किसी खातून का आगे आना, असेंबली में आना, रिप्रेजेंटेशन भी तो चाहिए होती है ना। मैं आपको बताऊं जी, आई मस्ट से इस पाकिस्तान में अगर काम हुआ है ना, तो 70% से भी ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने काम किया। आप देखिए ना, जो सड़कें बनी हैं, स्कूल्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं। मैं तो अपने ज़िले की तो मैं खुद गवाह हूँ। ठीक है। कि किस तरीके से मेरा, आई वॉज एन MNA पिछली दफ़ा एंड माई सन वॉज एन MPA, किस तरह फंड्स दिए गए, किस तरह काम कराए गए, और किस तरीके से सारी डेवलपमेंट। और ये एक ज़िला नहीं था, एवरी डिस्ट्रिक्ट उसकी शक्ल ही बदल गई। बिल्कुल ऐसे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आज ईद का मौका है, मैं नहीं चाहता कि हम कुछ और साइड की गुफ्तगू जो है और ये बहुत गलत बात लोग करते हैं। हाँ। कि जी सिर्फ लाहौर में हुआ। हाँ। नो, आप जाएं सदर्न पंजाब में। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मुझे याद है, मैं पिछले दिनों मुझे लिया जाने का इत्तेफाक हुआ नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो लिये तक मैं 100 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी दौड़ाता रहा, और हार्डली 5 से 6 घंटे बाद मैं लिया था। और मैं सोच रहा था कि वो दरमियान में एक 100-125 किलोमीटर का आता है, थल आता है, थल का एरिया आता है, रेगिस्तान आता है, तो उसमें भी बड़ी बेहतरीन रोड बनी हुई थी और बेहतरीन गाड़ी चल रही थी। तो आई वॉज पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि यार ये वाकई काम हुआ, डेवलपमेंट हुई है, और सड़कें ज़ामिन होती हैं तरक्की की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मियाँ साहब ने बहरहाल वो काम किए हैं, लेकिन जहाँ तक फिर पनामा आ गया, पनामा के बाद के जो हालात थे, उसमें उनसे उनकी मनी ट्रेल मांगी गई, वो फिर वो ना दे सके, फिर सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो गए, वो एक अलग एपिसोड है। नहीं जी, बात सुने, उनको सिर्फ वो क्या था, वो नौकरी जो बच्चे की थी, वो अब क्या चीज होती है, वो बच्चे से तनख्वाह लेने की, उसकी वजह से सिर्फ वो फारिग हुए। अदरवाइज मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ। अच्छा चलें, आज चुके ईद का मौका है, मैं आपसे लाइटर मूड आपसे पूछता हूँ मियाँ साहब। नहीं, आप, मैं एक बात जी प्लीज। मैं बिहाड़ी पहले पहुंचती 6.5 घंटे में, ठीक है, अब मैं पहुंचती हूँ 3.5 घंटे में। बिल्कुल बचा आपका टाइम। मेरे अंदर की रोड्स जो सी फ्रॉम बिहाड़ी टू विलेज, जो रोड्स हैं बेहतरीन बनी हुई माशाल्लाह। मेरे वहाँ स्कूल्स, छोटे छोटे स्कूल्स वो बने हुए। DHQ मेरा बेहतरीन, THQ मेरे बेहतरीन, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स बने हुए बेहतरीन। आप मेरा मतलब, मगर इस वक्त नहीं मैं कह चुका है, इस वक्त अल्लाह दी पनाह
के अच्छा अच्छा बताओ क्यों, हमारे बिल्कुल फ्री इलाज होता था DHQ में। अब नहीं हो रहा, आप चाहें तो सही। फ्री नहीं, वो मामूली फीस रखी हुई है वो तो। और मामूली के अच्छा मामूली फीस, फिर दवाइयाँ बाजार से खरीदते। अच्छा वहाँ मैं दवाइयाँ भी देती। अच्छा मैम चले परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, आगे जाके आते हैं। ये बताएं कि मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं? सच सच बताना, आपका राब्ते में मैं तो होंगे। चाहती नहीं मियाँ साहब आए, अच्छा क्यों? मैं चाहूंगी मियाँ साहब आए जब वक्त आएगा अच्छा। वजीर आजम बनने का, कुछ काम हम लोग करेंगे। कौम से वादा करके गए हैं कि मैं इलाज करवा के आ जाऊंगा। बात सुने, जो इस वक्त की पोजीशन है, कोई बोले धड़ अंदर, कोई बोले धड़ अंदर, ना इंसाफ है ना कुछ। आपको पता है मेरे ऊपर भी पर्चा हुआ था, किस चीज़ का, कि 15 साल पहले मैंने किला वो नीला गुम्बद में जलसा, 15 साल पहले जलसा किया था मुशर्रफ दौर में। मुशर्रफ दौर में। मुझे पर्चा आ गया। उनका ख्याल था डर जाएगी, अच्छा उनकी उम्र ज़्यादा होगी तो डर जाएगी। मैं क्या, पकड़ो, अच्छा असी तो पुराने पापी हाँ, अच्छा पकड़ो। मेरा बैग भी तैयार है, बाल्टी भी तैयार है, मग्गा भी तैयार है। अच्छा तो इधर बैठना या उधर बैठना, हमने तो बैठना ही है ना, तो हम तो आराम से बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने कहा जी वो आप करवा लें, वो बेल करवा लें, बेल बिफोर अरेस्ट। मैं कहा खबरदार मेरे से किसी ने बात की। हम वो लोगों के खून है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमने पाकिस्तान बड़े प्यार से बनाया, वही खून है इधर। नवाब अला यार, नवाब अहमद यार के पास कायदे आज़म गए, एक मेरा दादा था, एक मियाँ मुमताज़ का वालिद था। उनके पास गए कि कितनी सीटें आप निकाल सकते हो, यूनाइटेड इंडिया था उस वक्त पंजाब में से। उनका 50%, कहते पाकिस्तान नहीं बनता। उन्होंने कहा कितनी होनी चाहिए, उन्होंने कहा 75%। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने मेहनत की, बाद में पता कितनी मुस्लिम लीग को सीटें मिली, 95%। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, समझ गए ना, बिल्कुल ऐसे ही। एंड माय अंकल वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। अच्छा मैम ये बताएं, आप जावेद हाशमी साहब का नाम ले रही हैं बार बार। जावेद हाशमी साहब के साथ तो मुस्लिम लीग नून को बड़े इख्तलाफात थे, आज भी वो साइड लाइन पे हैं, मेन स्ट्रीम में काम नहीं कर रहे वो। कोई बात नहीं, कोई बात उनकी खिदमात का एतराफ़ होना चाहिए था ना। नहीं, इज्जत करते हैं हम सब, कोई बात नहीं। उनकी इस्लाह, अच्छा कोई बात नहीं, ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पार्टी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं, पार्टी एक समुंदर होती है, उसमें कभी किसी की इज्जत बढ़ जाती है, कभी किसी की, एंड वन शुड बी एबल टू समटाइम्स सिट क्वाइटली आल्सो। कोई बात को पता है, 7.5 साल हम लोगों ने इतना काम किया। मैं थी, राजा जफरुल्लाह थे, झगड़ा साहब थे, जावेद हाशमी साहब 6 साल अंदर है, साथ ये हम गिने चुने बंदे थे ना। ख्वाजा साहब थे, वो बाद में आए 2 साल के बाद, और बस इसी तरह हम लोग थे। तो मेरा किसी का नाम अगर मैं भूल जाऊं तो माजरत। दूसरे लोग इतने एक्टिव नहीं थे, कभी कोई हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। अच्छा मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर आज आपने, हर आदमी में खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। इमरान खान साहब में कौन कौन सी खूबियाँ ये आपने गिन के बतानी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तो बेगम तहमीना दौलताना साहिबा हमारे साथ हैं, और ब्रेक के बाद इमरान खान साहब में, इमरान खान साहब मैं नहीं दस सकती। ब्रेक के बाद इमरान खान साहब में कौन कौन सी खूबियाँ हैं वो बेगम तहमीना दौलताना साहिबा से पूछेंगे। मेरे साथ